Hello, my dear students. Welcome back once again to a very beautiful chapter that we're talking about, and that is nothing but equilibrium. I am your teacher for the chapter, Manjot Singh. Now, let me just give you a brief overview, just very brief, that we were talking about something called ionic equilibrium, right? Where we talked about that this is the equilibrium attained between the unionized form of a particular substance and its ionized form, right? So if there is an AB electrolyte which dissociates into A plus and B minus when dissolved in water, the equilibrium achieved between this unionized form and ionized form of AB is known as ionic equilibrium, right? And we also taught you something known as that this AB which dissociates into A plus and B minus, it can dissociate completely and it can dissociate partially, right? If it dissociates completely, this is known as strong electrolyte, and if it dissociates partially, it is known as weak electrolyte. And therein a very important term came into existence, and that was nothing but degree of dissociation, right? Degree of dissociation, which was mentioned as alpha, where alpha for a strong electrolyte is equals to 1, but alpha for a weak electrolyte is almost tending to 0. It's very less, very less, right? So this degree of dissociation is very important term when we talk about a weak electrolyte. Talking about a strong electrolyte, it is not an important term. Why? Because alpha is almost 1 when we talk about a strong electrolyte. But when we talk about a weak electrolyte, this becomes a very important term. And that's the reason that in a weak electrolyte, when the equilibrium is achieved, we need to study what are the factors which affect this degree of dissociation. Very simple, very easy topic for today, but yes, it's going to have a very strong impact in this chapter. So please make sure that while you are noting down or while you are seeing this video, you are having your pens in your hands, notebooks beside you. With this, I will start with today's lecture, and that is nothing but factors affecting degree of dissociation. Factors affecting degree of dissociation, right? And that degree of dissociation is mentioned with alpha. The character is alpha. So very simply, I'll just give you a brief of this, that AB is in equilibrium with A plus and B minus. What would be the factors which would be affecting alpha? Alpha affect मतलब वो उसको increase भी कर सकता है, decrease भी कर सकता है. कोई भी factor जो उसको increase करे या decrease करे, मतलब यहाँ से उसको forward लेके जाए या backward लेके जाए. और ये चीज हम ले शैटलर प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेके आ सकते हैं, राइट? बस उन्हीं में से कुछ फैक्टर्स, out of those few factors will be enlisted over here, and one very special factor is there for a weak electrolytes degree of dissociation. Let's begin with the first factor, and that is nothing but temperature. आप बोलोगे सर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे. द रीजन ओवर हेयर इज दैट योर आयोनिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस. और प्रेशर का इफेक्ट तो किस पे होता है? इट इज ओनली इफेक्टेड बाय प्रेशर. इट इज ओनली इफेक्टेड बाय द गैसेस, reactants or products. So the first very important factor is temperature. Now if I write down an equation over here, AB, let's say this is a weak electrolyte. We are going to talk about a weak electrolyte only because strong electrolyte alpha is 1, right? So weak electrolyte goes to A plus B minus. This system has achieved equilibrium. It is at equilibrium, right? तो कुछ ना कुछ इसका अल्फा आ चुका होगा, right? Alpha is nothing but out of 1 mole of the substance, how many moles are dissociating up till equilibrium is achieved. So if I am saying the equilibrium is achieved, I am saying that degree of dissociation of this particular electrolyte is, let's say, alpha. Generalize करके चलते हैं, let's say the degree of dissociation is alpha. मतलब 1 मोल में से
अल्फा मोल जो है वो डिसोसिएट हो चुका है और A+ और B- मुझे मिल चुका है। अब मुझे अगर ये प्रोसेस में दिख रहा है तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली डिसोसिएशन प्रोसेस है, राइट, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है। तो if you see, your forward reaction over here becomes endothermic because heat is on this side, right? Heat is being absorbed by the substance, and obviously your backward reaction becomes exothermic. So I can simply say that dissociation is an endothermic process, correct? So if dissociation is an endothermic process, and if I increase the temperature of the system when at equilibrium, so according to Le-Chatelier's principle, on increasing the temperature, equilibrium will shift towards the right. Why? Towards the right, basically I'm trying to say towards endothermic direction on increasing the temperature. So we see that forward direction will be favored. Therefore, on increasing the temperature, dissociation will increase. And if dissociation will increase, my lovely students, if dissociation will increase, then I would just simply say that temperature, on increasing the temperature, the degree of dissociation for a weak electrolyte will increase. So, alpha is directly proportional to temperature. If temperature increases, alpha increases. For which electrolyte? We are talking about weak electrolytes. So, alpha is directly proportional to temperature. Temperature increase, alpha will increase. Simply, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, बस इसी के बेसिस पे आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। करेक्ट, सिंपल है, इजी है। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ भी आने वाला है, जो कि ये जो फैक्टर है वो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने स्टडी किया था और उन्होंने उसको एक लॉ के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। बट पहले लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड कि AB एक इलेक्ट्रोलाइट है विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज एक्वस, उसको आपने H2O लिक्विड के अंदर डाला है, राइट, यू जस्ट पुट इट इनटू H2O लिक्विड। नाउ try and understand that this electrolyte is in equilibrium with its ions, that is A plus aqueous and B minus aqueous, correct? जिसमें आपको दिख रहा है कि ये जो H2O है that is in liquid state, that is in pure liquid state and it's in excess quantity over here. तो अब ये इक्विलिब्रियम, ये जो सिस्टम है वो एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है, और इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है मतलब इसका एक अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ है। नाउ आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई जस्ट basically increase the water over here. What I do is basically pour down some more water into the system. So when I'm pouring down more water, I would say basically I am basically diluting the system, right? आप जब पानी डाल रहे हो तो आप बेसिकली सिस्टम को क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, करेक्ट। सो व्हाट हैपेंस विद दैट, that is what one of the scientists saw, that when I am diluting this system that is already at equilibrium of a weak electrolyte, by adding water, what he observed was that alpha started to increase. So on dilution alpha started to increase. तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर एक बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताया कि भाई एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे अगर आपने इसका C कंसंट्रेशन लिया था तो ये 0 और ये 0 था, और अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे ये C माइनस C अल्फा बचा होगा, ये C अल्फा बना होगा, ये भी C अल्फा बना होगा। और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से ये चीज बताई कि भाई हम यहां पर देख रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज मच मच स्मॉलर देन 1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट Ki इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। और अगर हम यहां से देखें तो ये अल्फा जो है
ये अल्फा जो है दैट इज नथिंग बट बेसिकली अंडर रूट ऑफ KI/C, और ये भाई साहब तो कांस्टेंट है, ये भाई साहब तो कांस्टेंट है। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप ये कांस्टेंट को निकाल दें तो आप देखेंगे कि अल्फा जो है, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/1 अंडर रूट ऑफ C। अल्फा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और अगर इस कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे तो अल्फा जो है वो डिक्रीज होगा, और अगर आप इसको डाइल्यूट करोगे, वेयर डाइल्यूशन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ कंसंट्रेशन, राइट। कंसंट्रेट करना सॉल्यूशन को मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, और डाइल्यूट करना मतलब वाटर ऐड कर रहे हो। सो सिंपली यहां पर जब आप इसके अंदर डाइल्यूशन करोगे, व्हेन यू विल डू डाइल्यूशन दैट इज वाटर को ऐड करोगे, तो आप यहां पर देखोगे कि वाटर को ऐड करने पे, डाइल्यूशन होने पे अल्फा जो है वो इंक्रीज होएगा। क्यों? क्योंकि 1/C जो है वो किसके इक्वल है? डाइल्यूशन के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं। उन्होंने बोला कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, जो पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, तो वो A+ और B- इक्विलिब्रियम पे है। आप अगर इस सिस्टम के अंदर और पानी को ऐड करते हो, मतलब आप डाइल्यूट करते हो, तो वो बोला कि भाई ये फॉर्मूला देखो, KI = C∝², वेयर अल्फा is found to be under root of KI/C, which implies alpha, very important, alpha is proportional to under root of 1/C, which I can say that alpha is proportional to under root of D, where C is nothing but concentration and D is nothing but dilution। और ये ढूंढने वाला जो आदमी था उनका नाम था ऑसवाल्ड्स। तो उन्होंने एक डाइल्यूशन का लॉ ही दे दिया यहां पर। उन्होंने बोला कि भाई फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। जितना ज्यादा आप डाइल्यूट करते जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस देता चला जाएगा, उतना ज्यादा जो है वो आयंस देता चला जाएगा। एंड दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे वापस रिकॉल होगा। सो ये पॉइंट को यहां पर ही लिख लो दैट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सब कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख ले, अगर उसके अल्फा को अफेक्ट करना है तो या तो टेम्परेचर को बढ़ाओ या फिर आप क्या करो, डाइल्यूशन करो। डाइल्यूशन करोगे अल्फा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे अल्फा बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है ये। सो अगर मुझे यहां पर दोनों फैक्टर्स लिखने हैं तो मैं सिंपली ये बोलूंगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करोगे आयंस बढ़ेंगे, डाइल्यूशन करोगे आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो अल्फा बढ़ रहा है, राइट। अल्फा क्या है? अल्फा इज बेसिकली how many molecules, how many moles basically of an electrolyte has converted to ions. Simple, easy. So बस यही है important चीज जो आपको समझनी है। With this, I will move on to the next factor, which is the most important factor, and that is nothing but common ion effect. That is nothing but common ion effect. ये एक ऐसा लौता फैक्टर है जो अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कॉमन आयन आने से अल्फा जो है वो डिक्रीज होता है। किसका अल्फा? अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा। अब ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आएगी, बट लेट्स फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन व्हाट सर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। लेट्स अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक AB और ये बंदा ऑलरेडी एक सिस्टम में इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, A+B-, हमने पानी के अंदर डाला था
और ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये चल रहा है, ए बी इज इन इक्विलिब्रियम विद ए प्लस बी माइनस, मतलब इसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट्स से अल्फा आ चुका है। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे ये C माइनस सी अल्फा रहा होगा, ये C अल्फा, ये C अल्फा रहा होगा। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, बट वो ये जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने ऐड किया वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस तरीके का है कि वो भाई साहब उसके अंदर जो आयन है वो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन के साथ कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर ऑलरेडी एक सोल्यूशन था किसका, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, करेक्ट है। उसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, लेट्स से यहां पर मैंने डाला CH3COO Na, ठीक है, सोडियम एसिटेट डाला मैंने, दिस इज सोडियम एसिटेट। अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि एक सॉल्ट है, सॉल्ट्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि सर मैंने इसके अंदर HCl भी डाला, HCl के अंदर भी कॉमन आयन है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, जैसे ही मैं यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं दैट इज CH3COOH जो कि अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है, दैट इज लाइक दैट। मैंने इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा, कंसेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी देयर, बट मैंने क्या किया, मैंने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया बाय एडिंग HCl। जैसे ही मैंने HCl ऐड किया तो होगा क्या, इस सिस्टम के अंदर Cl माइनस और H प्लस, HCl मैंने ऐड किया लेट से कंसेंट्रेशन C1 के साथ। अब C1 कंसेंट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से C1 आयंस इसके देगा, C1 आयंस इसके देगा। तो अब सिस्टम के अंदर H प्लस आयंस की तादाद जो है वो बढ़ गई। अगर H प्लस आयंस की तादाद बढ़ गई तो ये जो इक्विलिब्रियम है, सिंस इसका प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है सिस्टम के अंदर, तो ये इसको घटाने के लिए, ये इक्विलिब्रियम में वापस आने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो CH3COOH का जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो डिक्रीज हो जाएगा। द अल्फा विल डिक्रीज, द आयंस आर एसोसिएटिंग एंड गिविंग मी द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। परफेक्ट है। तो अगर मेरे पास जनरली एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक AB गोइंग टू A प्लस B माइनस, और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AC ऑफ कंसेंट्रेशन C1 डाल दिया, जो कि मुझे A प्लस C1 आयंस और C माइनस A प्लस C1 आयंस और C माइनस C1 आयंस जो है वो देता है। तो ये A प्लस कॉमन होने की वजह से, ये A प्लस कॉमन होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से इसका अल्फा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर अल्फा डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो कंसेंट्रेशंस यहां इक्विलिब्रियम पे आपने देखी थी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो गया है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चे जो यहां पर ध्यान रखना है कि जो नया न्यू अल्फा ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट in the presence of a strong electrolyte having a common ion is nothing but dissociation constant of weak electrolyte divided by the concentration of the strong electrolyte that you have inserted in the system। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से डिराइव भी किया जा सकता है, इट कैन बी डिराइव्ड, लेकिन मैं यहां पर वो डेरिवेशन में पढ़ना नहीं चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। कॉमन आयन इज नथिंग बट द सप्रेशन ऑफ द डिक्रीज ऑफ degree of dissociation of a weak acid or a weak base by the addition of strong electrolyte containing a common ion is known as common ion effect। हाँ, मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ये अपने आयंस के साथ क्या है, डिसोसिएशन बना के एक इक्विलिब्रियम आया हुआ है। मैंने इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया NaCl, जो कि Na+Cl माइनस है। तो दिस सिस्टम, दिस एडिशन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस इक्विलिब्रियम,
उसका रीजन है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप बनाओगे तो दैट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। कहीं पे भी Na प्लस और Cl माइनस तो इसके इक्वेशन में आ ही नहीं रहा। लेकिन केस नंबर 2, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 मैंने यहां HCl डाल दिया, ये HCl अंदर जाके Cl माइनस और H प्लस देगा, तो अब सिस्टम का H प्लस जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चे। देखो यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब क्या होगा, अब होगा क्या, अब होगा ये कि भाई ये आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इस इक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाके, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके अल्फा को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ताकि वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ सके। इसी इफेक्ट को बोला गया कॉमन आयन इफेक्ट। Very, very important. Please note down this definition. And with this, for this year, the chapter called as equilibrium is over. Please make sure that you have noted down all the things that I have taught you in the class, made your own notes, solved your NCERT, and in the next coming class, we will discuss your NCERT and we will finish off with the chapter. Till then, please take care of yourself. Bye-bye.